Hello students, my name is Gargi and in this video lecture we are going to study the chapter The Necklace. So this chapter it tells us how we should be happy with what we have. जो हमारे पास है हमें उसमें खुश रहना चाहिए क्योंकि अगर हम खुश नहीं रहेंगे जितना हमारे पास है तो it will become problematic for us. Just like what happened with Matilda. So there is our main character Matilda and Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? So Matilda को invite किया गया है एक party के लिए and she has this dress. She has somehow arranged this dress but she has no jewelry. उसके पास कोई jewelry नहीं है पहनने के लिए साथ में. So what happens next when she borrows the necklace from a friend and then she loses it? तो क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? So let's start the chapter. She was one of those pretty young ladies born as if though an error of destiny. कि किसी भाग्य ने उसके साथ मजाक कर दिया हो, एक भाग्य की जो गलती होती है ना वो हो गई हो. She was so beautiful, so pretty, so young, but she was born in a family of clerks. So she did not have all the means. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved or married by a man either rich or distinguished. So she had no dowry. ना तो उसके पास डाउरी थी, ना उसके पास कोई ऐसे मीन्स थे जिससे वो फेमस हो जाए और ना ही उसकी किसी ऐसे इंसान से शादी हुई थी जो रिच हो या डिस्टिंग्विश्ड हो. And she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education. She was simple but she was unhappy. So she compromised and she married this simple clerk, but she was very unhappy with the way she was living. She suffered incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. So she was suffering continuously. उसको हर दिन एक स्ट्रगल की तरह लगता था क्योंकि उसके पास ना कोई डेलिकेसीज थी या ना कोई लग्जरी नहीं थी लाइफ में, उसके पास कोई अच्छी चीज़ें नहीं थी, तो वो उसके लिए बहुत सफरिंग था. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs. All these things tortured and angered her. उन सारी चीज़ों वो सारी चीज़ें जो थी उसका अपार्टमेंट और वो पुरानी सी चेयर्स जो थी, उसका फर्नीचर बहुत पुराना था, वहाँ पे सभी चीज़ें पुरानी थी, ख़राब सी वॉल्स थी, वॉर्न आउट चेयर्स थी, तो ये सारी चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती थी क्योंकि उसके पास वो सारी लग्जरीज नहीं थी तो उसको उसकी लाइफ ही पसंद नहीं आती थी. When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." She would think of elegant dinners of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing. And she loved only those things. So, the husband, he was a very simple man. वो सिंपल सा खाना खा के भी खुश होता था जब वो घर आता था शाम को. एंड ही यूज्ड टू अनकवर दैट टेरीन. टेरीन इज व्हाट? इट्स अ डिश जिसपे खाना सर्व किया जाता है, मोस्टली सूप सर्व किया जाता है. तो जब वो उसको अनकवर करता था एंड ही यूज्ड टू फाइंड आउट दैट दिस पॉट पाई, सो ही यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी. वो उसमें ही खुश था. बट मटिल्डा वॉज completely opposite of it. She was not happy with that. वो सिंपल चीज़ों से खुश नहीं होती थी. जब वो सिंपल पॉट पाई एंजॉय कर रहा होता था तब वो उसके दिमाग में क्या चलता रहता था? लग्जरियस डिनर्स और कि खाना सिल्वर में सर्व हो रहा है, एक्सक्विजिट फूड सर्व हो रहा है, बहुत अच्छा अच्छा खाना सर्व हो रहा है उसको. तो वो उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती रहती थी. तो वो अपने हस्बैंड से बिल्कुल ऑपोजिट थी. उसके पास ना तो फ्रॉक्स थी ब्यूटिफुल, ड्रेसेस थी, ना तो उसके पास अच्छी थी, ना उसके पास कोई ज्वेलरी थी इतनी अच्छी. सो शी वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी. शी हैड अ रिच फ्रेंड, a schoolmate at the convent, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole days from despair and disappointment. So she had this friend. उसकी एक फ्रेंड थी जो कि बहुत रिच थी और जब भी वो उससे मिलने जाती थी तो और जब वापस आती थी वो काफ़ी दिनों तक रोती ही रहती थी क्योंकि वो रिच थी, उसके पास सारी वो चीज़ें थी जो उसको चाहिए थी, जो मटिल्डा को चाहिए थी, वो सारी चीज़ें उसके पास थी, उसकी फ्रेंड के पास. और जब वो ये चीज़ देखती थी तो उसको और ज़्यादा बुरा फील होने लग जाता था खुद में ही कि इसके पास तो सब है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है.
तो उसको वो उसके पास जाना ही अच्छा नहीं लगता था, उसको अपनी फ्रेंड को ही विजिट करना अच्छा नहीं लगता था, जस्ट बिकॉज शी यूज्ड टू बी वेरी सैड फॉर डेज आफ्टर विजिटिंग हर. So one evening, her husband returned, elated, bearing in his hand a large envelope. Here he said, "Here is something for you." तो एक शाम को उसका husband आता है, and he is very happy. He has this envelope in his hand, and he says कि ये तुम्हारे लिए है. She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. उसने एक कार्ड निकाला जिसपे ये words लिखे हुए थे. The Ministry of Public Instruction and Madame George Ramponneau asked the honor of Mr. and Madame Loisel's company. Monday evening, January 18th, at the minister's residence. So this was an invitation for the Loisels. उनके लिए एक invitation आया था, and it looked like it was a big event. तो that's why Loisel was very happy कि उसने जब आके मटिल्डा को वो एनवेलप दिया तो ही थॉट दैट शी विल बी हैप्पी कि हम लोगों को इतनी अच्छी पार्टी में इनविटेशन मिला है. Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, what do you suppose I want with that? So she became angry. जैसा कि उसने होप किया था उसके हस्बैंड ने, उसका बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन उसको मिला. She became angry और उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूं इस इनविटेशन का, तुमने जो मुझे इनविटेशन ला के दिया है क्या करूं मैं इसका. But my dearie, I thought it would make you happy. You never go out and this is an occasion and a fine one. Everybody wishes one and it is very select. Not many are given to employees. You will see the whole office world there. So he is trying to convince her कि it's a very good party, very luxurious party. और वहाँ पे ज़्यादा लोगों को इसका इनविटेशन नहीं मिला है. दैट मीन्स बहुत सेलेक्टेड लोगों को वो इनविटेशन मिला है इस चीज़ का. तो तुम पूरा ऑफिस वर्ल्ड देख पाओगी वहाँ पे, तो इट विल बी फन. और तुम कभी कहीं बाहर भी नहीं जाती हो, सो इट विल बी अ फन आउटिंग फॉर अस. She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" Okay, so she is not happy. Why? Because she has nothing to wear to such an exclusive event. अभी उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसके पास कुछ अच्छा सा पहनने को नहीं है इस पार्टी में, इतनी बड़ी पार्टी में जाने के लिए उसके पास कुछ अच्छा सा पहनने को नहीं है. तो उसने इरिटेट होके देखा अपने हस्बैंड को और उससे ये बात बोली. He had not thought of that. He stammered, "Why the dress you wear when we go to the theater? It seems very pretty to me." He was silent, stupefied, in dismay at the sight of his wife weeping. So she started weeping, and he became very. He did not know what to do. She was crying. So he asked her कि अरे तुम वो जो थिएटर पहन के चलती हो जो ड्रेस, वो उसमें क्या प्रॉब्लम है? It seems fine to me. I like that dress. He stammered, "What is the matter? What is the matter?" By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice. तो वो उसे पूछता है अरे क्या हुआ बताओ तो सही, तुम रो क्यों रही हो? So बहुत अपना गुस्सा कंट्रोल करके, vexation is what? She controlled her anger and she responded in a very calm voice, wiping her moist cheeks, अपने आंसुओं को अपने गालों से पोंछते हुए वो बहुत calm voice में जवाब देती है. Nothing, only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I. किसी ऐसे को दे दो एक इनविटेशन जिसकी वाइफ शायद वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से फिट हो पाएगी उस एनवायरनमेंट में, क्योंकि मेरे पास तो ऐसी कोई ड्रेस है नहीं, तो मैं वहाँ पे अजीब लगूंगी सबसे. आई बी लाइक एन ऑड वन आउट, मैं अजीब दिखूंगी वहाँ पे. तो किसी ऐसे कॉलीग को दे दो जिसकी वाइफ वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से फिट हो पाए. She was grieved, but answered, "Let us see, Matilda. Let us see, Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple." So he was very sad also. तो उसने उससे पूछा कि चलो अच्छा ठीक है बताओ कि एक ऐसी ड्रेस जो और ओकेजन्स के लिए भी प्रॉपर हो
पर्पस हमारा कंप्लीट हो जाए तो ऐसी कोई एक ड्रेस कितने की आएगी, कोई एक अमाउंट तो होगा. She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. So she started thinking. उसने सोचना शुरू किया अपने माइंड में, and she was making all these calculations in her head कि ऐसा कोई अमाउंट बताऊं जिससे बताते थे वो एकदम से ना बोल दे कि इतना अमाउंट बिल्कुल नहीं, इतना तो मैं नहीं दे सकता. तो उसने एक ऐसा कोई रीजनेबल अमाउंट सोचने की कोशिश की जो बेचारा जो इकोनॉमिकल क्लर्क था उसे बहुत ज़्यादा ना लगे. Finally she said in a hesitating voice, I cannot tell exactly but it seems to me that 400 francs ought to cover it. बोलती है exactly तो नहीं बता सकती बट हाँ 400 francs में हो जाएगा मेरा काम, मेरी ड्रेस बन जाएगी. He turned a little pale. उसका हल्का सा कहीं ना कहीं रंग उड़ गया, like because for him it's a big amount. For he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sundays. तो उसने exactly इतना ही अमाउंट बचा के रखा था ताकि वो एक गन खरीद सके, ताकि वो अपने दोस्तों के साथ लार्क इज काइंड ऑफ अ बर्ड, एक बर्ड होती है, तो लार्क शूट करने के लिए उसके फ्रेंड्स जाते थे समर सीजन में. तो उसने भी ये सोचा था कि इतना अमाउंट सेव कर लेता हूँ तो मैं भी गन खरीदूंगा ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ जा सकूँ. सो ही बिकेम अ लिटिल पेल. वो थोड़ा सा पेल हो गया, उसका थोड़ा सा रंग उड़ गया क्योंकि उसने एग्जैक्टली इतना ही अमाउंट बचा के रखा था अपनी गन के लिए. बट नेवरदलेस ही आंसर्ड, वेरी वेल आई विल गिव यू 400 francs बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस. उसने सेक्रीफाइस की अपनी गन एंड ही सेड ठीक है मैं तुम्हें दे देता हूँ पैसे बट ट्राई करना कि इतने अमाउंट में तुम ले लो ड्रेस. ओके, सो द नेक्स्ट डे, द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मैडम लॉइजल सीम्ड सैड, डिस्टर्ब्ड, एंग्शियस. अब पता नहीं इसको क्या हो गया होगा क्योंकि जैसे जैसे बॉल का दिन पास में आता जा रहा था, पार्टी का दिन पास में आता जा रहा था, शी वॉज बिकमिंग एंग्शियस, डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा परेशान होती जा रही थी और ज़्यादा. नेवरदलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी. उसकी ड्रेस ऑलमोस्ट रेडी थी. हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, व्हाट इज द मैटर विद यू? यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days. कि तुमको क्या हो गया, तुम 2-3 दिन से बड़ा स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो. अब तो ड्रेस भी बन गई जो तुम चाहती थी. And she responded, I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a poor stricken look. I would prefer not to go to this party. अब उसका दूसरी प्रॉब्लम उसके सामने खड़ी कर दी उसने कि मेरे पास तो कुछ ज्वेलरी नहीं है उसके साथ पहनने के लिए. ड्रेस तो बन गई लेकिन मैं उसके साथ ज्वेलरी क्या पहनूंगी? आई विल हैव अ पुअर स्ट्राइकन लुक. मैं कैसी लगूंगी? बहुत पुअर लगूंगी वहां पे. ऐसा लगेगा कि मैं बहुत गरीब हूँ. ड्रेस तो अरेंज कर ली पर ज्वेलरी नहीं है पहनने को, तो अब मैं पार्टी में नहीं जा रही हूँ. He replied, you can wear some natural flowers in this season. They look very chic. He says, अरे natural flowers पहन लो, बड़े chic लगते हैं, बड़े fashionable लगते हैं इस सीजन में. तो she was not convinced. No, she replied, there is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women. कि बिल्कुल भी नहीं, इतना एम्बैरेसिंग, इससे ज़्यादा एम्बैरेसिंग कुछ नहीं हो सकता कि वहाँ पे इतनी विमेन होंगी और वो सब इतने एक्सपेंसिव ज्वेलरी पहन के आएंगे और मैं वहाँ पे ऐसा नेचुरल फ्लावर्स पहन के जाऊँगी, तो वो कैसा इतना अजीब लगेगा. सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. शी सेड नो. देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर. गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फ्रॉस्टर and ask her to lend you her jewels. तो जाओ तुम्हारी फ्रेंड जो है वो फॉरेस्टियर जो है उसको जाके ढूंढो, उससे बोरो कर लो. उसके पास तो वैसे भी शी इज वेरी रिच, तो उसके पास बहुत सारी ज्वेलरी होगी, तो वो तुमको उधार दे देगी कुछ टाइम के लिए. She uttered a cry of joy. It is true, she said. I had not thought of that. कह रहे हाँ, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं कि मैं उससे बोरो कर सकती हूँ. The next day, she took herself to her friend's house and related her story of distress. Madame
Forestier went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, "Choose, my dear." तो अगले दिन वो जाती है Forestier के पास and she brings out this big box of it was filled with jewels और वो उसे कहती है चूज कर लो, जैसी तुम्हें ज्वेलरी पसंद आए इसमें से चूज कर लो. She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. She tried the jewels before the glass, hesitated, but could neither decide to take them nor leave them. Then she asked, "Have you nothing more?" उसे सारी चीज़ें एक एक बार ट्राई की, ना वो उसको छोड़ना चाहती थी ना वो उसको लेना चाहती थी. शी वॉज वेरी कन्फ्यूज. तो अल्टीमेटली उसने पूछा कि क्या इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ भी है? Why, yes, look for yourself. I do not know what will please you. Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. So वो कहती है चलो ठीक है, तुम खुद ही देख लो, जो तुम्हें चाहिए वो तुम अपने हिसाब से देख लो, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है. सो उसको एक सैटिन, ब्लैक कलर के सैटिन के बॉक्स में एक नेकलेस मिलता है डायमंड्स का. हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट. शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वॉज एस्थेटिक. देन शी आस्क्ड in a hesitating voice full of anxiety, "Could you lend me this, only this?" "Why, yes, certainly." So she is hesitating because that necklace looks very expensive. डायमंड नेकलेस है, बहुत एक्सपेंसिव दिख रहा है उसको, उसको उठाने में ही उसके हाथ कांप रहे हैं. सो शी, बट जब वो अपने नेक पे लगा के देखती है उसको अपनी ड्रेस के साथ, सो इट्स लुकिंग अमेजिंग. तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम सिर्फ मुझे ये दे सकती हो? So she says, "Yes, why not? Of course." She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. So she gives her a hug. She is very happy. उसको अब ज्वेलरी भी मिल गई, ड्रेस भी मिल गई, सारी उसकी विशेस पूरी हो गई है. The day of the ball arrived. Madame Loisel was a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling and full of joy. All the men noticed her, asked her name and wanted to be presented. She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all the admiration, this victory so complete and sweet to her heart. So, she was a great success. जब party वाला day arrive हुआ and she went there with her husband, she was a great success. She was graceful, elegant, सबसे वो हंस के बात कर रही थी. Every single man there, every single man in that party, he wanted to be presented, he wanted to talk to her. She was beautiful, she was elegant, she was a great success. और ये जो victory थी वो उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा important थी क्योंकि she needed that in her life. She went home towards 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little salons since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. So she went home around 4 o'clock. सुबह में 4 बजे करीब वो घर गए. उसके जो husband था, she was half asleep, वो आधे सो चुका था वो, बाकी 3 और हस्बैंड्स के साथ जिनकी वाइफ दे वर एंजॉयिंग देमसेल्व्स, तो वो हस्बैंड्स वहाँ पे कहीं पे सैलून में सो रहे थे. He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. So उसने उसके ऊपर एक रैप डाला, लाइक शॉल काइंड ऑफ समथिंग, जो उसको ठंड से बचा ले. सो वो इतना एलिगेंट नहीं था जितनी उसकी ड्रेस थी, तो वो एक कॉन्ट्रास्ट हो रहा था कि वो ड्रेस तो इतनी एलिगेंट, उसमें इतनी रिच लग रही है वो, और वो बड़ा पुअर सा लग रहा था. सो शी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर वुमेन हु वर रैपिंग देमसेल्व्स इन रिच फर्स. तो उसको वो सोच रही थी कि यहाँ से फटाफट भागते हैं क्योंकि ये बाकी जो वुमेन है वो अपने आप को इतने महंगे महंगे फर्स में कवर कर रही हैं और मेरा जो ये रैप है वो कितना पुअर सा है, सस्ता सा है. तो वो वहाँ से वो चाहती थी कि कोई उसको ऐसे नोटिस ना करे क्योंकि अभी सबने अंदर उसको देखा है. शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, वेरी रिच, बट यहाँ पे वो बाहर ऐसे दिखेगी तो उसको वो ये नहीं चाहती थी, तो वहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहती थी.
Loisel detained her. Wait, said he, I am going to call a cab. But she would not listen and descended the steps rapidly. When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. So बहुत देर तक उनको कोई कैब नहीं मिली. फिर एक कोचमैन दिखा, उन्होंने उसको वहाँ बुलाया. They walked along towards the river, hopeless and shivering. तो जब तक उनको टैक्सी या कोई कैब नहीं मिली, क्योंकि the hour was very odd, तो वहाँ पे वो रिवर के along चलते जा रहे थे, shivering because ठंड बहुत ज़्यादा थी. Finally they found one of those old carriages that one sees in Paris. और उनको एक old सा carriage मिला जो पहले के टाइम में पेरिस में चला करते थे. After nightfall, it took them as far as their door and they went wearily up to their apartment and they were very tired now. बहुत ज़्यादा थक चुके थे वो. So दरवाजे पर उस कैरिज ने उन्हें छोड़ा और वो बहुत थके हुए थे, तो वो अपने अपार्टमेंट में ऊपर चले गए. It was all over for her and on this his part he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. So for her it was all over. पार्टी खत्म हो चुकी थी जिसके लिए उतने टाइम से प्रिपरेशंस कर रही थी, जिसके लिए इतना खर्चा करवाया था अपने हस्बैंड का, वो टाइम अब चला गया, पार्टी हो गई है. और उसके हस्बैंड के लिए उसको बस इतना पता था कि उसको सुबह उठकर 10 बजे ऑफिस जाना है. She removed the wrap from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. So she was going to take that one final look in the mirror, उसके उस elegant beautiful look का. और जैसे ही उसने मिरर में देखा तो she uttered a cry. बहुत जोर से वो चिल्लाई. क्यों? क्योंकि उसका जो नेकलेस था वो उसके नेक पे अब नहीं था. Loisel, already half undressed, asked, "What is the matter?" She turned towards him excitedly. I no longer have Madame Forestier's necklace. कि अरे मेरे पास तो Madame Forestier का नेकलेस है ही नहीं, वो तो गुम हो गया. He arose in dismay. What? How is that? It is not possible. And they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pockets, everywhere. They could not find it. उन्होंने सब जगह ढूंढा, पर कहीं पे भी ड्रेस के फोल्ड्स में, क्लोक में, जो जिस रैप में वो आई थी वो उसमें सब जगह ढूंढा, बट उनको वो नेकलेस कहीं नहीं मिला. He asked, "You are sure you still had it when we left the minister's house?" तो पूछता है कि तुम श्योर हो कि तुमने जब हम वहाँ से निकले थे मिनिस्टर के घर से तब तक वो तुम्हारे पास था. Yes, I felt it as we came out, but if you had lost it in the street, we should have heard it fall. It must be in the cab. कि हाँ, जब मैं बाहर निकली थी तब तक मेरे पास था, और अगर रास्ते में गिरता तो हमको सुनाई तो देता कि वो गिरा है, तो जरूर कैब में ही होगा. Yes, it is possible. Did you take the number? No. And you? Did you notice what it was? No. They looked at each other, utterly cast down. Finally, Loisel dressed himself again. I'm going, he said, over the tracks where we went on foot to see if I can find it. So वो सोचे कि अरे कैब का पता है क्या, कैब का नंबर क्या था, नोटिस किया था कुछ, उन्होंने कुछ नोटिस नहीं किया था, दोनों बहुत ज़्यादा थके हुए थे. सो ही सेज कि अब मैं वापस कपड़े पहनता हूँ और वहाँ जाता हूँ जहाँ से हम पैदल चल के आए थे, हो सकता है वहाँ पे हमको नेकलेस मिल जाए. एंड ही वेंट. She remained in her evening gown, not having the force to go to bed. Towards 7 o'clock, her husband returned. He had found nothing. वो around 7 in the morning वो वापस आया, but उसे कुछ भी नहीं मिला था. He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspapers offering a reward. उसने सब किया, पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस के पास गया, कैब ऑफिस में गया, सब जगह उसने एडवर्टाइजमेंट्स दिए कि किसी को नेकलेस मिले, रिवॉर्ड्स रखे. बट शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ bewilderment before this frightful disaster. Loisel returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. वो पूरा दिन परेशान होती रही
क्योंकि उसको पता नहीं था कि अब करना क्या है। एंड लॉइजल रिटर्न इन द इवनिंग, लॉइजल जब शाम को आया तो उसको भी कुछ नहीं पता चला था। दैट मीन्स नेकलेस का भी कोई पता नहीं है कि नेकलेस है कहाँ। He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired, that will give us time. तो तुम अपनी फ्रेंड को ये बोल दो कि तुमने क्लैस्प जो है जिससे उसको बंद करते हैं हम लोग, अटैच करते हैं नेकलेस को, सो वो टूट गया है, तो तुम उसको रिपेयर करवा के उसको दे दोगी ताकि हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा टू फिगर समथिंग आउट कि करना क्या है फाइनली। She wrote as he dictated. उसने लेटर लिख दिया जैसा जैसा वो बोलता गया। At the end of a week, they had lost all hope, and Loisel, older by 5 years, declared, "We must replace this jewel." Finally, उन्होंने डिसाइड किया कि अब कुछ नहीं हो सकता, नेकलेस तो मिलने का नहीं, तो अब हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि किसी और की चीज़ ली है हमने, गुम कर दी है, तो अभी हमको नया तो देना पड़ेगा ना। So he said that we have to replace it now. In a shop of the Palace Royal, they found a chaplet of diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost. So there was this string of diamond. Chaplet is what? A string. A series of diamonds, a string of diamonds, जो नेकलेस उन्होंने गुमाया था वो उसके जैसा ही लगता था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इससे ही उसको रिप्लेस कर देते हैं। It was valued at 40,000 francs. They could get it for 36,000. 40,000 का था वैसे तो, बट उनको 36,000 में तक डिस्काउंट वगैरह जो भी होगा 36,000 तक वो मिल जाएगा। लॉइजल possessed 18,000 francs. लॉइजल के पास 18,000 francs थे, which his father had left him. He borrowed the rest. He made ruinous promises. अब 18,000 francs ही थे, बाकी का तो उसको बोरो करना पड़ेगा, तो उसने लोगों से प्रोमिसेस किए। रूइनस प्रोमिसेस मतलब ऐसे प्रोमिसेस जो शायद उसको रूइन कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट वो क्या कर रहा था, बोरो कर रहा था। Took money from usurers and the whole race of lenders. Usurers are what? Someone who lends money on a very high rate of interest. तो उसने usher से जितने भी lenders थे अलग अलग तरह के, सबसे पैसा बोरो करा। Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs. जैसे जैसे उसने 36,000 francs पूरे किए और नेकलेस ले लिया। When Madame Loisel took back the jewels to Madame Forestier, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." तो जब वो फॉरेस्टियर को नेकलेस वापस देने गई तो शी सेड, कह रही तुम्हें ना जल्दी लौटा देना चाहिए था, हो सकता है मुझे इसकी ज़रूरत पड़ जाती। Madame Forestier did not open the jewel box as Madame Loisel feared she would. What would she think if she should perceive the substitution? What should she say? Would she take her for a robber? तो मैडम फॉरेस्टियर ने वो बॉक्स ओपन करके नहीं देखा, जैसा कि मैडम लॉइजल को डर था, क्योंकि अगर उसने खोला और उसको पता चल गया, परसीव द सब्स्टिट्यूशन, इफ शी फाइंड्स आउट, अगर वो पहचान लेती है वो सब्स्टिट्यूशन, तो वो तो ये समझती कि ये तो कोई रॉबर है जिसने मेरा नेकलेस ले लिया और दूसरा दे दिया मुझे। Madame Loisel now knew the horrible life of necessity. She did her part, however, completely heroically. It was necessary to pay this frightful debt. अब ठीक है, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि नेकलेस जो देना था वो दे दिया, बट नाउ द डेट, वो तो पे करना ही पड़ेगा। तो अब उनकी लाइफ एकदम से बहुत ज़्यादा चेंज हो गई और उसमें दोनों को, हस्बैंड वाइफ दोनों को अपना अपना पार्ट करना था। सो शी वुड पे इट, अब वो जो डेट है वो पे तो करना पड़ेगा। दे सेंट अवे द मेड, दे चेंज्ड देयर लॉजिंग्स, दे रेंटेड सम रूम्स इन द एटिक, इन एन एटिक। तो उन्होंने मेड हटा दी, उन्होंने जो अपना रहने, जहाँ वो रह रहे थे वो जगह चेंज कर दी। लॉजिंग्स मतलब जहाँ पे वो लाइक अकोमोडेशंस उन्होंने चेंज कर दी, और उन्होंने किसी एटिक में कहीं पे रूम्स ले लिए। She learned the odious work of a kitchen, और वो जो unpleasant work, odious means unpleasant work जो था किचन का, वो भी उसको सीखना पड़ा, क्योंकि अभी तक तो सारा काम मेड करती थी।
She washed the dishes, she washed the soiled linens, their clothes and dishcloths, which she hung on the line to dry. She took down the refuse. Took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. So now she was living a very simple life, even simpler life. पहले से भी ज़्यादा. अब सारा काम उसे खुद करना पड़ता था, किचन का, कपड़े धोने पड़ते थे, डिशेस धोनी पड़ती थी, पानी खुद से लेके आना पड़ता था, नीचे से ऊपर लेके आना पड़ता था, सारा कचरा जो होता था वो खुद फेंकने जाना पड़ता था. तो मतलब जो एक नॉर्मल काम करते हैं सारा, वो सारा काम अब उसको करना पड़ रहा था. And clothed like a woman of the people, she went to the grocers, the butchers, the fruiters with her basket on her arm, shopping, haggling to the last sou of her miserable money. Sou is money in France, ठीक है. So वो नॉर्मल, अभी उसके कपड़े कैसे हो गए थे, एकदम नॉर्मल विमेन की तरह हो गए थे, जैसे नॉर्मल कपड़े पहनते हैं ना, वैसे हो गए थे. She went to the grocers, the butchers. जब उसको जितना भी सामान खरीदना होता था वो सारा सामान खुद ही खरीदने जाती थी. ग्रोसरी भी खुद खरीदने जाती थी, फ्रूट लेने जाना खुद खरीदने जाती थी, सारी चीज़ें उसको खुद से ही करनी पड़ रही थी. अब हैगलिंग टू द लास्ट सो, और वो हर एक लास्ट थोड़े थोड़े पैसे के लिए भी हैगल करती थी. दैट मीन्स बार्गेन करती थी, क्योंकि उसके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे. The husband worked evenings putting the books of some merchants in order, and nights he often did copying at 5 sous a page. Now she was doing her part and the husband was doing his part. वो extra time ज़्यादा काम कर रहा था और रात में वो कॉपी करता था पेजेस को 5 सौ पर पेज के लिए. And this life lasted for 10 years. At the end of 10 years they had restored all. 10 साल लगे उनको डेट पे करने के लिए. 10 साल में उन्होंने सारा डेट पे कर दिया. Madame Loisel seemed old now. She had become a strong, hard woman, the crude woman of the poor household. Her hair badly dressed, her skirt array, her hands red. She spoke in a loud tone and she washed the floors with large pails of water. So डेट तो पे हो गया, बट अब मैडम लॉइजल एकदम चेंज हो चुकी थी. जैसी वो पहले थी ना, एलिगेंट, ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल, वो बिल्कुल वैसी नहीं थी. शी वॉज वेरी लाउड और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसने कैसे कपड़े पहने, उसके बाल कैसे हैं. उसके बाल हमेशा मेसी से रहते थे, उसकी स्कर्ट हमेशा रॉन्ग तरीके से उसने पहनी होती थी. द स्कर्ट अरे लाइक इन अ रॉन्ग वे, एंड शी यूज्ड to wash the floors with the large pails of water, large buckets से वो फ्लोर्स को धोती थी. तो मतलब वो बहुत एक कॉमन वुमेन की तरह हो गई थी, क्योंकि अब सारा काम वो खुद करती थी. जो इतने साल से इतनी मेहनत करती आ रही थी, तो अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कैसी दिख रही. But sometimes when her husband was at the office, she would seat herself before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. कभी कभी जब उसका हस्बैंड ऑफिस होता था तो she used to seat herself, विंडो के सामने बैठ के, और वो उस रात के बारे में सोचती थी, वो उस पार्टी के बारे में सोचती थी जहाँ पे वो इतनी ब्यूटीफुल थी, इतनी एलिगेंट थी, इतनी सुंदर लगी थी. और लास्ट टाइम शायद वही था जब वो इतनी प्रिटी लगी थी. How would it have been if she had not lost the necklace? Who knows how singular is life and how full of changes, how small a thing will ruin or save one. तो वो ये सारी चीज़ें सोचती थी कि कैसे इतनी छोटी सी चीज़, एक नेकलेस बहुत छोटा सा होता है, कितनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो शायद आपकी लाइफ को बना भी देती हैं और बिगाड़ भी देती हैं. वो सारी ये चीज़ें सोचती है बैठी बैठी कि अगर उसने वो नेकलेस नहीं घुमाया होता तो क्या होता, अगर उसने वो नेकलेस बोरो ही नहीं किया होता तो क्या होता. वो ये सारी चीज़ें बैठ के वो सोचती रहती है. On Sunday, as she was taking a walk in the Champs-Élysées to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Madame Forestier, still young, still pretty, still attractive. So when she was taking a walk one Sunday and she
looked at this woman and she thought that, oh, I recognize this woman, and it was Madame Forestier, and she was still young, still very pretty, still very attractive. Madame Loisel was affected. Should she speak to her? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? पहले तो उसने सोचा बात करूं या नहीं करूं, सोचा क्यों ना करूं, अब तो मैंने सारा डेट पे कर दिया और मैं उसको बताऊं भी क्यों ना, तो उसने डिसाइड किया कि उसको सारी बात बताएगी. She approached her. Good morning, Jenny. Her friend did not recognize her and was astonished to be so familiarly addressed by this common personage. तो उसकी जो फ्रेंड थी वो थोड़ा सा उसको अजीब लगा कि इतना कॉमन सी जो पर्सोनेज, इतना कॉमन सी पर्सनालिटी है, मुझसे आके ऐसे इतना फेमिलियरली बात करी जैसे ये मुझे जानती हो, क्योंकि वो तो उसको पहचान ही नहीं पाई. She stammered, "But madam, I do not know, you must be mistaken. No, I am Matilda Loisel." तो वो बोलती है अरे नहीं नहीं, मैं मटिल्डा लॉइजल हूँ, मुझे कोई मिस्टेक नहीं हुई है, मैं I know you and you know me. Her friend uttered a cry of astonishment. Oh my poor Matilda, how you have changed. कि अरे तुम तो कितना ज़्यादा चेंज हो गई हो. Yes, I have had some hard days since I saw you and some miserable ones and all because of you. कि हाँ कुछ hard days आए हैं मेरी लाइफ में और कुछ miserable दिन भी आए हैं और ये सारी चीज़ें तुम्हारी वजह से हैं. Because of me? How is that? अरे मेरी वजह से कैसे? वो मैडम फॉरेस्टियर बोलती कि मेरी वजह से कैसे हुआ? You recall that the diamond necklace that you loaned me to wear to the minister's ball? Yes, very well. Well, I lost it. How is that since you returned it to me? वो पूछती है कि तुम्हें वो डायमंड नेकलेस याद है जो तुमने मुझे लैंड किया था पार्टी में पहनने के लिए? हाँ, कि वो मैंने गुमा दिया था. I lost it. कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, तुमने तो मुझे रिटर्न किया, तो गुम कैसे हो सकता है? I returned another to you exactly like it, and it has taken us 10 years to pay for it. You can understand that it was not easy for us who have nothing, but it is finished and I am decently content. तो बोलती है कि पर मैंने उसको रिप्लेस कर दिया था और उसी डेट को पे करने में मुझे 10 साल लग गए, एंड इट्स नॉट ईजी. हम जिनके पास कुछ नहीं है उनको इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट पे करने में बहुत टाइम लगा और वो हमारे लिए ईजी नहीं था, बट फाइनली मैंने वो डेट पे कर दिया है एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ नाउ. Madame Forestier stopped short. She said, "You say that you bought a diamond necklace to replace mine?" तो मैडम फॉरेस्टियर बोलती है कि तुमने एक डायमंड नेकलेस यूज किया मेरा नेकलेस रिप्लेस करने के लिए. Yes, you did not perceive it then. They were just alike. कि हाँ तब तुमको डिफरेंस समझ में नहीं आया था, वो तो बिल्कुल सेम थे दोनों. And she smiled with proud and simple joy. Madame Forestier was touched and she took both her hands as she replied. So उन्होंने उसके दोनों हाथ पकड़े and she replied, "Oh my poor Matilda, mine were false. They were not worth over 500 francs." क्यों poor Matilda, मेरे वाला नेकलेस तो फॉल्स डायमंड्स थे, वो तो ओरिजिनल था ही नहीं और उसका अमाउंट तो हार्डली 500 फ्रांसिस था जिसके लिए तुमने 36,000 फ्रांसिस दे दिए. वो तो सिर्फ 500 फ्रांसिस का ही अमाउंट था. सो दैट मीन्स मटिल्डा स्पेंट द 10 years of her life to pay for something that was not even worth that much. उसका इतना अमाउंट ही नहीं था, वो इतना वर्थ ही नहीं करता था जिसके लिए मटिल्डा ने अपने लाइफ के 10 years खराब कर दिए, अपने और अपने हस्बैंड के भी साथ में. सो दैट टेल्स अस किड्स दैट हमारे पास जितना है हमें उसमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे या ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि वो हमारे लिए ही हार्मफुल हो जाए. ओके, सो दिस वाज आवर चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू.